Hi everybody, welcome back to the second part of the second chapter, making of the constitution. First part हमने discuss किया experts committee of Congress, then we discussed कि demand of constituent assembly chronologically कैसी थी, then how was the constituent assembly actually formed based on the cabinet mission plan, and then we discussed the working of the committee along with important members and the very important objective resolution और उसका क्या use हमारे आज constitution में हम देख सकते हैं. And the last topic we did was the major functions of Constituent Assembly, which worked as not only for making the Constitution, but also as the first parliament of our Dominion legislature. Now आज हम डिस्कस करेंगे मेजर कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कमिटीज़ वो थी जिनको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट गोल्स बांटे हुए थे, टू एडमिनिस्ट्रेट इट प्रॉपरली, वही डेलीगेशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर, सो दैट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैन टेक प्लेस. So here we have two types of committees. We have major committees and minor committees. Important one are major committees because इनके पास important functions थे. Right, here we'll discuss उनके नाम और उनके chairman. First we have is the Union Powers Committee headed by Nehru. Union Constituent Committee, which is again headed by Nehru. Then Provincial Constituent Committee, Patel, because हमारे पास provinces भी थे and we know कि सरदार पटेल, the man of unity, statue of unity, क्योंकि उन्होंने सारे provinces को convince कर लिया था to be the part of the Indian Union. तो वो इसीलिए because he was actually heading the committee and he was taking care of his job. Rules of procedure, Dr. Rajendra Prasad. States Negotiating Committee, it was Nehru. Steering Committee, Prasad. And then we have advisory committee headed by Nehru. Now advisory committee के अंदर 5 सब committees थी, which was committee on fundamental rights, J.B. Kriplani, advisory committee on minorities, H.C. Mukherjee, excluded and partially excluded areas, A.V. Thakkar, Northwest Frontier Tribal Committee. But ये committee इंडिया में यूज़ नहीं हुई because ये region पाकिस्तान में चला गया था. And last up, it is Northeast Frontier Tribal, Assam excluded and partially excluded regions. It is Gopinath Bardoloi. And last but not the least, one of the most important, the drafting committee, which was headed by Dr. B.R. Ambedkar, which was a committee with 7 members. ये छोटी सी timeline है regarding the drafting committee. It was set on August 1947. Now यहाँ पर confusion होगी 1947, सारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो 1946 से काम कर रही है. यहाँ पर ये डिफरेंस है कि ये सारे मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट थे, बट दे वर इंटायरली पार्ट ऑफ द प्लानिंग. ड्राफ्टिंग कमिटी वो है व्हेन ऑल द आइडियाज़ एंड डिसीजंस वर पुट टू पेपर. एक्चुअली उनको क्लॉज बाय क्लॉज फ्रेम किया गया, लिखा गया, वो काम ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया. तो वो सेटअप हुई थी अगस्त 29, 1947 को. फर्स्ट ड्राफ्ट उन्होंने रेडी किया February 1948, विच वॉज देन पुट टू पब्लिक डिस्कशन, एंड इट वॉज October 1949 when the second draft or the final draft was made ready by the drafting committee. So this is the major committees of the Constituent Assembly. Then we have minor committees. I do not really think they are important because I have seen all the previous year questions as well. कोई भी question minor committee से related ना ही prelims में ना ही mains में था. Nevertheless, just to keep them in mind and FOMO ना हो, कुछ भी chapter का हमने miss नहीं किया, बस इसी feeling के लिए I'll just discuss them with the leader, the chairman. So we have Finance and Staff Committee, Rajendra Prasad. Credentials, A.K. Iyer. Now what is credentials? Credentials are like किसने क्या काम किया, credit देने से बना है credentials. Then Ad Hoc Committee and the Flag Committee, Rajendra Prasad. Committee for Functions of Constituent Assembly, G.V. Mavlankar, जो कि स्पीकर भी थे हमारे पार्लियामेंट के, इंटरिम पार्लियामेंट के. लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी, एस केधर, अगेन अ फेमस नेम, जो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी फर्स्ट लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बनी थी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड लास्ट इज द प्रेस गैलरी, उषा नाथ सन. आई थिंक शी इज़ दी ओनली वुमन chairman of any committee that we have seen. And press gallery, again, which is related to the photos or memory collections maybe. Right? So this was the minor committees and the major committees. Now comes the most important and sometimes silly and confusing point, which is enactment or enforcement. कौन सा पहले हुआ, कौन सा कब हुआ और क्यों हुआ. Right? So this is what we'll do and we'll discuss it parallelly ताकि हम confusion create ही ना होने दें. हम comparison करके पढ़ेंगे तो समझ जल्दी आएगा. उससे पहले एक छोटा सा फैक्ट, ये बी आर अम्बेडकर के बारे में थे, दैट ही वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया. ही वाज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडर्न मनु. आई थॉट इट वाज इंपॉर्टेंट कि हम ये एक साथ लिख लें. यू कैन यूज़ देम इन योर मेन्स आंसर, और if on a good day we have a question in prelims directly from this, we never know. Right? So this is about B.R. Ambedkar. Now we'll talk about the process chronologically. पहले हुआ enactment. Now what happened that after Ambedkar presented the final draft, there was first reading in 1948 November. This पे group discussion हुआ. Then there was second reading, which was more detailed, clause by clause reading हुई पूरा नवंबर से लेकर अगले साल अक्टूबर तक 1949. And it was the third reading, which was the final reading, And इस third reading के बाद बी आर अम्बेडकर एक रेजोल्यूशन, एक मोशन लेकर आते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में. ये उसका कोट है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट. यानी अब बहुत हो गया. तीसरी रीडिंग के बाद एवरीबडी सेटिस्फाइड दैट येस द डॉक्यूमेंट दैट वी हैव इज
is good enough to be the constitution. So that was the motion that was presented by B.R. Ambedkar, which this motion was passed by the Constituent Assembly, and that is when on 26 November 1949 we adopted the constitution. It is the date of adoption. ठीक है, date of adoption. I'll tell you the meaning and difference also abhi. Now on 26 November 1949, out of 299 total members, 284 were present and they signed the constitution. And जैसे preamble में लिखा हुआ है, they adopted, enacted and gave to themselves the constitution. उस टाइम के constitution में there were 395 articles, 8 schedules and a preamble. Preamble के बारे में एक और fact, it was the last part that was voted upon एंड ऑल्सो द लास्ट पार्ट दैट वर इन्फोर्स्ड. वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करने के बाद बिल्कुल लास्ट में, मतलब 26 जनवरी के भी बाद जब सारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हो गया, उसके बाद प्रियम्बल को इन्फोर्स किया गया, राइट. तो फिर 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, इस दिन भी कुछ हुआ होगा. इस दिन 5 मेजर प्रोविजंस थे जिन्हें इनैक्ट किया गया, जो थे सिटीजनशिप, बिकॉज हमने अभी पार्टीशन देखा था, वी हैड टू रिकग्नाइज हु वर इंडियंस एंड हु वर नॉट. इलेक्शंस, बिकॉज वी हैड टू इलेक्ट अ न्यू गवर्नमेंट, अभी तक हम इंटरिम गवर्नमेंट से काम चला रहे हैं. प्रोविंशियल पार्लियामेंट, बिकॉज वो ऑलरेडी फंक्शन कर रही है तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस हमें चाहिए. टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, इट मस्ट बी अ कलेक्शन ऑफ प्रोविजंस जिनकी रिक्वायरमेंट थी. एंड शॉर्ट टाइटल. अभी शॉर्ट टाइटल क्या है? शॉर्ट टाइटल इज एक्चुअली शॉर्ट नेम फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लाइक सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग. शॉर्ट टाइटल जो आर्टिकल है उसके अंदर यही लिखा है, दैट शॉर्ट टाइटल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. या दैट्स इट, एंड दिस वाज एनैक्टेड. सो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह रेडी था 26 नवंबर 1949 को, तो फिर सीन क्या हुआ? व्हाट हैपेंड वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स अलॉन्ग विद स्पेसिफिकली नेहरू, दे वांटेड कि हम इस इन्फोर्समेंट को डिले करें. किस डेट को? 26 जनवरी 1950 को. क्यों? क्योंकि वो डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी. इसके लिए हम थोड़ा बैकड्रॉप में जाएँ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू में पहले स्वराज की मांग करती थी. अभी स्वराज क्या थी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं थी. ये थी कि तुम इंडियंस को लेजिस्लेट करने दो, लेजिस्लेचर बनने दो, एडमिनिस्टर करने दो, इंडिया के रूल्स को इंडिया के फेवर में बनाओ, चाहे सॉवरेनिटी हमारी ब्रिटिश के पास ही रहे, यानी हमारा सॉवरेन जो है वो ब्रिटिश क्राउन ही रहे, लेकिन इंडियन को स्वराज इस तरह दे दो कि हम लेजिस्लेट कर पाएँ. लेकिन इट वॉज इन लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर 1929, जिसका यूनिकनेस था कि फर्स्ट टाइम हमने पूर्ण स्वराज का जिक्र किया कि हम लेजिस्लेट भी हम खुद करेंगे, एडमिनिस्टर भी हम खुद करेंगे, और सॉवरेनिटी भी अब इंडियंस की ही होगी. वी गोना किक आउट द ब्रिटिशर्स इंटायरली फ्रॉम आवर लैंड. सो यही पूर्ण स्वराज को कमेमोरेट करने के लिए 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डे, यानी कि हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर दिया इस रेजोल्यूशन के बाद. तो नेहरू का आइडिया था कि ये डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पर हमने पहली बार सोचा कि इंडिया सॉवरेन इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, हमें ज़रूरत नहीं है ब्रिटिश क्राउन के एडमिनिस्ट्रेशन की. तो इस डेट को हम हिस्ट्री बुक्स में डाल दें, हम इस डेट को कमेमोरेट करें. इसीलिए क्यों ना हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा डिले कर 26 जनवरी को इन्फोर्स करें. एंड एवरीबडी अग्रीड. इट वाज नॉट अ वेरी हार्ड थिंग टू डू. इतने साल हो गए थे, 2 महीना और से. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड ऑन 26 जनवरी. रिमेनिंग प्रोविजंस वर इन्फोर्स्ड एंड दिस बिकेम द डेट ऑफ कमेंसमेंट. जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ तो इनैक्ट 26 नवंबर की अगर हम बात करें तो वो है डेट ऑफ इनैक्टमेंट, एंड डेट ऑफ अडॉप्शन 26 जनवरी की बात करें तो वो है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और डेट ऑफ कमेंसमेंट, राइट. अब इस दिन क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिपील कर दिए गए, क्योंकि अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी. अब हमारे पास अपने बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस थे. और लेकिन दिस इज़ आई थिंक इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. देयर वाज वन प्रोविजन और एक्ट विच वाज कंटिन्यूड, which was called Abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949. इसको बिल्कुल मगा भी करना पड़ेगा. इसकी डिस्क्रिप्शन फ्यूचर चैप्टर्स में हम करेंगे, अभी यहाँ पर इसकी रेलेवेंस नहीं है. सो आई रिपीट, इट इज़ Abolition of Privy Purses Council Jurisdiction Act 1949. This is the only act made by the British which was continued as it is, right? And this is what we see is the enforcement and enactment of the Constitution. And this is where it ends. Now this is a part which was in the Laxmikant chapter, which is about the 58th Amendment Act. Now इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा पार्ट 22. पार्ट 22 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आखिरी पार्ट है, जिसका टाइटल है ये शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स. पार्ट 22 में ओरिजिनली 3 आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 393, 394, 395 लास्ट आर्टिकल तक. लेकिन 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 से एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 394A.
इफ़ यू डिस्कस दीज आर्टिकल्स लाइन बाय लाइन, देन आर्टिकल 393 इज़ शॉर्ट टाइटल, जो मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नाम क्या है, सॉरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज रिटन इन आर्टिकल 393। आर्टिकल 394 टॉक्स अबाउट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ अभी हमने डिस्कस किया 26 जनवरी 1950। देन आर्टिकल 394 ए जो अभी ऐड हुआ वो था अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली इंग्लिश में बना, लेकिन इट वाज देन रूल्ड एंड थ्रू दिस अमेंडमेंट इट वाज मेड कि अब सारे कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में ट्रांसलेट करो, और उसके बाद आने वाले लेजिस्लेशन, रेगुलेशन, अमेंडमेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल हो रहा है, उसको तुम हिंदी में भी ट्रांसलेट करके लेजिस्लेट करोगे और पब्लिश करोगे। वी डू नॉट हैव अ नेशनल लैंग्वेज बिकॉज हमारे पास हिंदी और इंग्लिश का हमेशा से conflict रहा है with southern languages, but we do have an official language of Hindi plus English. So it was important कि हम हिंदी को प्रमोट भी करते रहें. We also have this under DPSP, which is promotion of Hindi language. So this is उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए ये आर्टिकल इम्प्लीमेंट हुआ कि अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लाया जाएगा. आर्टिकल 395 इज अबाउट रिपील्स. अनदर प्रोविजन फॉर 394 आर्टिकल ए इज दैट ये दिस विल बी डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कोई भी जब ट्रांसलेशन होती है वो इट इज़ डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट विच इज़ पब्लिश्ड एंड साइंड. तो जब हिंदी का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था इसको भी पब्लिश करके साइन किया गया, जैसे हमने ऊपर देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया 26 नवंबर 1949 को प्रेजेंट मेंबर्स ने, वैसे हिंदी वाले कॉन्स्टिट्यूशन को भी साइन किया गया 1950 में. सो दिस वाज अबाउट द 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो चैप्टर में मैंशनड है एक्सप्लिसिटली. सो आई थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. नाउ वी हैव द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज़ क्रिटिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. 6 मेजर हेड्स हैं जिन पे क्रिटिक डिस्कस किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. द फर्स्ट वन इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बिकॉज इट वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड. हमने देखा कि प्रिंसली स्टेट्स के तो नॉमिनेटेड ही थे, तो इलेक्शन का सवाल ही नहीं उठता. प्रोविंसेस के भी जो इलेक्शंस थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू हुए थे, जो PR सिस्टम था, और जिनका जो वोटर बेस था वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, वो टैक्स पे, एजुकेशन पे, प्रॉपर्टी पे बेस था. यानी जो इलेक्शंस थे वो डायरेक्टली नहीं हुए, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी वो सारे इंडिया की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही थी. सेकंड क्रिटिक इज दैट नॉट अ सॉवरन बॉडी. व्हाई? बिकॉज इट वाज क्रिएटेड सेशंस विद द प्रपोजल एंड परमिशन ऑफ ब्रिटिश. हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का आइडिया किसका था? ऑगस्ट ऑफर आया, सर क्रिप्स अपने ड्राफ्ट के साथ आए. कैबिनेट मिशन था वो इंस्टीट्यूशन जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस की डेफिनेशन दी, कौन मेंबर्स होंगे, कितनी सीट्स होंगी, पार्टीशन के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन सी होगी, मुस्लिम लीग की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन सी होगी, ये सब कैबिनेट मिशन कर रहा था. सो दिस वाज इट इज़ नॉट अ सॉवरन बॉडी. इसकी क्रिएशन और इसके सेशन सब कुछ तो ब्रिटिश डिस्कस कर रहे थे. तो हाउ कैन यू से दैट इट वाज अ सॉवरन बॉडी? द ओनली सॉवरेनिटी विच वी फंक्शन वाज दैट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई ब्रिटिश इंसान नहीं था. नेक्स्ट वी इज़ द critique that it was very time consuming. ये कुछ कंट्रीज़ का कंपैरिजन है. इंडिया took 2 years 11 months 18 days. USA took 4 months and it has 7 articles. उनका कॉन्स्टिट्यूशन कम और पैम्फलेट ज़्यादा है. Then Canada took 2 years. It has 2 years 6 months. It has 147 articles. Now Australia is अजीब ही एक्सेप्शन है. It took 9 years to promulgate its constitution. It has 128 articles. And then we have South Africa. It took 1 year. And I think you know that South Africa is considered to have the finest constitution in the world today, and it was made in just 10 years, right? और इसी provision पर टॉन्ट मारते हुए नसरुद्दीन शाह was a member of the constituent assembly. He mentioned that it was not a drafting committee, it was like a drifting committee. Drifting मतलब होता है ऐसे खिसक के चलने वाला, right? I wrote this so that if this comes maybe you can use this in your mains answers. Next is that it was dominated by Congress. इस पे Granville Austin, who has written the book Indian Constitution, Cornerstone of a Nation, he mentioned that the Constituent Assembly was a one-party body in essentially one-party country. The Assembly was Congress and Congress was India. ये क्रिटिक है क्योंकि हमने देखा 208 मेंबर्स कांग्रेस के थे हमारे 299 मेंबर्स में से, नहीं 389 मेंबर्स में से. सो ऑब्वियसली कांग्रेस का डोमिनेशन था. बट अगेन हमारे पास काउंटर पॉइंट ये होगा कि कांग्रेस हमने पढ़ा है हमेशा से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन रही है. उसके अंदर सारे रिलीजन भी थे, रीजन्स भी थे, कास्ट लैंग्वेजेस भी थी. So yeah, next we see the lawyer politician domination. इसका कोई काउंटर पॉइंट नहीं है. वी नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर बैरिस्टर्स, दे वर एडवोकेट्स. एंड तो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज भी, उसकी लेंथ, ब्रेथ, विथ सब कुछ बहुत बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ दिस. इसको हम वो भी कहते हैं लॉयर्स पैराडाइज. आइवर जेनिंग ने ये कमेंट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कि ये तो लॉयर्स पैराडाइज है. And the last we have is that it is dominated by Hindus. Lord Viscount Simon commented that it was a body of Hindus. Why so? Because out of 296 members, 163 members were Hindus. So that is about
approximately 55% of the total members of Constituent Assembly were belonging to one religion. So maybe this critique also stands true to somehow. However, we did have other members as well. ये table याद करने की ज़रूरत नहीं है. I think इतना याद करना सिर्फ quote करने के लिए is more than enough for your mains as well. Right, but I've just written this so that you can draw a relative comparison, that there were 80 people who were Muslims and 31 SC. And then we have Christians, backward tribes, Sikh, Anglo-Indians, and Parsis. So this was the critique of the Constituent. And this was the last topic of this chapter as well. And hope you liked it. This was the second chapter of Laxmikant completed. Stay tuned to the channel to check out all the videos for the rest of the book. Thank you.